بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، حضرت بی بی آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھیں، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی خادمہ ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے بھر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی، شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی مدینہ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی والدہ کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی والدہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکیں اور اپنی والدہ سے لپٹ کر خوب روئیں۔ حضرت آمنہ کی والدہ اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی والدہ نے جب اپنی نواسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتیں کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے انہیں کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں اور دل ہی دل اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاید وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھیں اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے مدینے میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑیں۔ اٹھنے پر سب سے آگے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کے سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوہ ہے۔
हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। घनी झाड़ियां, काले स्याह पहाड़, शाम का वक्त था और इस रेगिस्तानी वैरानी इलाके से इन तीनों लोगों का काफिला मक्का की तरफ चलता जा रहा था। हजरत आमना जब से अपने शौहर की कब्र से वापस आई थीं तो इनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा था। वो बड़ी खामोश खामोश रहती थीं। रास्ते भर वो अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पी रही थीं, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर ना करती थीं कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अबुआ के मकाम पर पहुंचकर अचानक हजरत आमना के सीने में दर्द उठा। उन्होंने हजरत उम्मे ऐमन को फौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हजरत उम्मे ऐमन ने हजरत आमना से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर हजरत उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊंचे टीले पर लेकर पहुंची। इस जगह पर पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हजरत आमना को ऊँटनी से उतार कर इस पत्थर पर लिटा दिया। हजरत आमना के सीने में बार बार अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शौहर का गम बहुत ज्यादा लगा हुआ था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हजरत आमना बार बार अपने सीने पकड़ रही थीं और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? आप खामोश क्यों हैं? मुझसे बात करें अम्मी। हजरत उम्मे ऐमन हजरत आमना के सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थीं कि ऐ आमना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हजरत आमना समझ चुकी थीं कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हजरत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हजरत आमना आंखें खोलकर अपने 6 साल कम सिन बच्चे को देखती और दिल ही दिल सोचती कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन भाई है, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा। हजरत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को बुलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि आज तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हजरत आमना ने मौत से चंद लम्हे पहले सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि मेरी जान, परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ। तुम इस बाप के बेटे हो जिसका नाम अब्दुल्ला है और जिन्हें अल्लाह ने 100 ऊँटों के एवज जिंदगी अता की थी। मैंने जो ख्वाब देखा वो अगर सच्चा है तो अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है। बस लोगों को हलाल और हराम में तमीज सिखाना। हर इंसान को मौत है, मैं भी अल्लाह को जान दे रही हूँ, मगर मेरा नाम मेरे बेटे की सूरत में हमेशा जिंदा रहेगा। ऐ मेरे बेटे, परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन करेगा। इतना कहकर हजरत आमना ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और अपने खालिक के हकीकी से जा मिली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो सर उठाकर देखा तो हजरत आमना की वफात हो चुकी थी। 6 बरस की उम्र और वालदा चल बसी, जो कि सारी मोहब्बतों का महवर थी। जंगल बयाबान है, न बहन है, न भाई, न कोई रिश्तेदार, एक खादमा है। क्या इनकी तसल्ली भी आपको सब्र दे सकती थी? आप माँ के सीने पर सर रख कर रो रहे हैं और अम्मी अम्मी पुकार रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वो क्या दर्दनाक मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद इस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब इसमें हजरत आमना को उतारने लगी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे कि मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे इन्हें घर ले जाना है।
हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हजरत आमना को कब्र में उतारा और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। हजरत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए। बेकरार होकर इधर उधर देखा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्र से लिपटे सुस्कियों से रो रहे थे और कह रहे थे, अम्मा तुझे पता है तेरे सिवा मेरा कोई नहीं था, तू भी मुझे छोड़कर चली गई, मैं तेरे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। हजरत उम्मे ऐमन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र से हटाने की कोशिश की तो मासूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं माँ के साथ जाऊंगा। मगर कम सिन यतीम नहीं जानते थे कि ज़ेरे ज़मीन जाने के बाद साथ छोड़ जाता है। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब तक आमना की कब्र नजर आती रही, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं इनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफर के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुंचे। मक्का वहां से बहुत दूर था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कैसे पहुंचे होंगे, कोई इस गम का अंदाजा नहीं लगा सकता। हयात तैयबा के 57 बरस गुजर चुके थे। 57 बरस की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मर्तबा मकामे अबूआ तशरीफ लाते हैं और सहाबा कराम से फरमाते हैं, यहाँ रुक जाओ, इधर ही डेरे लगा लो। 1000 आदमियों के खेमे लग जाते हैं। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे से निकलते हैं और वालदा मोहतरमा की कब्र मुबारक के सरहाने जमीन पर तशरीफ रखते हैं और सर मुबारक घुटनों में छुपाकर छोटे बच्चों की तरह हिचकियों से रोने लगते हैं। इस कैफियत में घंटों गुजर जाते हैं। 57 बरस ने सदमे को मुंदमिल नहीं होने दिया। घुटनों से सर उठाया तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। फरमाने लगे, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता। इधर से मेरे घर का दरवाजा खुलता और मेरी माँ पुकारती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ कर कहता, लब्बैक या अम्मा। बचपन में वालदा मोहतरमा की वफात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कफालत में ले लिया और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की गोशे आफियत में परवरिश पाने लगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी और इस्लाही चैनल ईगल की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।